Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 14th lecture of quality engineering. So, in the previous series of the lecture, we start another new chapter from your syllabus, which is the total quality management, which is the TQM. So, in yesterday's lecture, we tried to understand the basic things about the definitions of the TQMs. What are the principles of the in which principle there are the four basic principles of the TQMs, right? In which four basic principles the TQM is work. Then we also try to discuss all this aspect of the principles, all this seven aspect of that principles of the TQM in the detailed manner. After that, we are also discuss the basic features of the TQM, right? uh, Till that content, we can discuss all things about the TQM in the yesterday's lecture. So we can start the today's lecture with the benefits of the TQM, right? So let's start the discussions of the TQM. So TQM has a numerous benefits. It enables the organizations to the first, which is attain a higher profitability and increase the market share. If we are implementing the TQM in our organizations, it will definitely increase our profitability with increasing the productivity, and that's why its direct influence are shown on the market shares. The market shares of your organization, it will be definitely increased with the increasing the profitabilities. So the second, which is improve the customer satisfaction, that is the most important things in for any organizations. If your customers are satisfied with using that your product, right, so it will automatically reflect to your organizations, your moral supports, right, your employees, and some kind of the positive atmospheres are developed for the continuous improvements in your organization. So the customer satisfactions is from the my sides, it's the best or the biggest thing with as a benefits of the TQM. The third, which is the improve the organization's productivities, right? I just said 2 to 3 seconds before ago. The productivity is totally interrelated with the total quality management. If we are focusing on the quality, right, the quality product which is increasing the some in the manner of some kind of the that we are increasing the productivity. The as there is as we are focusing on the quality, let you understand very focusedly. The point is that if we are focusing on the quality, there is a less chances of the human errors and the process errors, right? As the chances of the human error and the process error as it is decreased, right, your product it will be itself is because become as a quality product, and the quality product is reducing the rework time. So ultimately the productivity of your product is totally increased, right? That's why the productivity increase in the manner of the product itself. The time is consumed in the rework, and the overall organizational productivity with the less rework, which is increased, which is the benefits of the TQM. The fourth, which is improve the employee moral and the job satisfactions. So with the effect of that, the moral of your employees who are working in your organizations and in the TQM, each and every member of your organizations is any kind of way they are attached with the improving the quality or some kind of the continuous improvement. So they are satisfied with their works, and their morals are boosted, and the job satisfaction it will be increased.
And next, which is create a positive work culture. It will reflecting in the manner of that some kind of the positive work culture is developed in your organizations. It is very helpful for any kind of the organizations who have a positive work culture. It will be reflecting all over the interrelated work. So the undertake a systematical problems which is solved सिस्टमेटिकली. इससे क्या होगा कि आप जो है वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं है कि आपने TQM लगा दिया और TQM इम्प्लीमेंटेशंस आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ऐसी कोई गारंटी किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है वो कोई नहीं देगा, राइट. पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, राइट, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टमेटिकल अप्रोचेस के साथ आप उस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो आपकी यहाँ TQM के अंदर डेवलप्ड हो जाती है. अब वो कैसे हो जाती है, तो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप्ड होने लगती है. एंड उसके पास ऐसी डिसीजंस पावर्स जो है वो डेवलप्ड होने लगती है, डिसीजन मेकिंग थॉट्स जो है वो प्रोसेस जो है पॉजिटिव अटेंशंस के साथ डेवलप्ड होने लगते हैं, जिससे एक बढ़िया जो है वो एक प्रोजेक्ट टीम के द्वारा जो है काम होता है और इस तरीके से एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्व करना जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो इजी हो जाता है. some kind of the troubles, some kind of the hurdles are removed from that way. And the next which is the improve the teamwork. इसके साथ जो है वो हर एक बंदा जो है वो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है अपने अपने काम से, तो एक बेटर टीम वर्क जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो बनने लगेगा. एंड विच इज़ क्रिएट ए क्लाइमेट कंडक्टिव टू अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. और इसके साथ जो है वो एक ऐसा जो है वो मैनरिज्म बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि सब लोग जो है वो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं. सो दिस इज बेनिफिट्स ऑफ द TQM, राइट. So next topic, which is the benefits of the TQM, or we can say that the advantage of unique to the TQM, it's make a company to a leader. अब अगर एक कंपनी के लिए जो है वो बात करें तो कंपनी जो है वो एक लीडिंग कंपनी जो है वो बन जाती है. देन विच इज़ द फास्टेस्ट इन द टीम वर्क. आप टीम वर्क के अंदर जो है वो फास्टेंस हो जाते हैं. मेक द कंपनी मोर सेंसिटिव टू द कस्टमर्स नीड. तो कंपनी जो है वो एक कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक ऐसे सेंसिटिव बन जाती है कि वो अगर कस्टमर का एक छोटा काम होगा तो वो एक सेंसिबल मैनर से जो है हर एक एम्प्लॉय उसके अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशंस देगा, क्योंकि वो कंपनी जो है वो एक मोटो के साथ अगर आप काम कर रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो आप उसको अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस, आप प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्टिविटी में काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी में, अगर आप मेंटेनेंस के साथ काम कर रहे हो तो मेंटेनेंस में भी ये चीज़ जो है वो कंपनी के जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है. देन द मेक द कंपनी विच इज़ अडेप्ट मोर रेडियली टू द चेंज, राइट. कंपनी जो है वो अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर, किसी अप्रोचेस के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो कंपनी जो है वो एक तरीके से रेडी होती है. एडेप्टेबल एक थिंकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है कि अगर आपको किसी बेटर चेंजेस की जो है वो ज़रूरत है तो फिर आप उसको एडप्ट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रेडी रहता है. देन द बेनिफिट्स टू द कंपनी. सो इससे जो है द क्वालिटी ऑफ योर कंपनी और क्वालिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट it will be improved. Then it will be reflected in the manner of the increasing the productivity. The staff are more motivated and the cost will be reduced as a result of the decreasing in the kind of the rework or kind of the less time which is consumed in the reworks or the repetitive works. So these are the benefits of the TQM. So the concept of the continuous improvements
बाय द TQM, कैसे जो है वो एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप्ड होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का TQM के अंदर. द TQM इज मेनली कंसर्न्स विद अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स इन ऑल द वर्क from the higher level strategic planning and decision making to detailed exclusions of work elements on a shop floor. तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लेके हायर एग्जीक्यूशन से लेके जो है वो छोटे से छोटा जो है वो वर्क एलिमेंट शॉप फ्लोर के अंदर होता है, तो सबके अंदर जो है वो ये टास्क जो है ये सब के साथ जो है TQM का कंसर्न्स रहता है. इट स्टेम्स फ्रॉम द बिलीफ दैट अ मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड एंड द डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड. तो इसके अंदर जो है वो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे जो है वो कम से कम मिस्टेक हम लोग करके एक डिफेक्ट फ्री जो है एक सिस्टम, एक ऐसा डिफेक्ट प्रिवेंटिव सिस्टम जो है वो कैसे बना सके, उसके लिए जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ वो TQM काम करता है. इट लीड्स टू अ कंटिन्यूस इम्प्रूविंग द रिजल्ट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द वर्क. वो सारे एस्पेक्ट के साथ जो है वो कैसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो उसके लिए काम करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग अ कैपेबिलिटीज, द पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज एंड द मशीन कैपेबिलिटीज. कैसे जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किस चीज़ के अंदर, पीपल के अंदर, खुद की कैपेबिलिटीज़ के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, मशीन कैपेबिलिटीज़ के अंदर, हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट के अंदर हम लोग कैसे जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लगा सकते हैं, डेवलप कर सकते, इस चीज़ के साथ जो है वो TQM जो है वो काम करता है. द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज मस्ट डील नॉट ओनली विथ द इन्वॉल्विंग रिजल्ट. जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ रिजल्ट के ओरिएंटेशन से जो है वो काम नहीं कर रहा है, बट द मोर इम्पोर्टेंटली विथ इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज. वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है विथ इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज़. अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ विद द ट्रेनिंग, विद द नॉलेज, विद द स्किल्स हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर ओवरऑल जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बढ़ता ही जाएगा. To produce a better results in the futures, right? If 5 major areas of focus for a capability improvements are डिमांड जनरेशंस, कैसे डिमांड जनरेशंस इंक्रीज की जा सकती है, कैसे सप्लाई जनरेशंस को बेटर किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजीज को बेटर किया जा सकता है, कैसे ऑपरेशंस को बेटर किया जा सकता है, राइट? और कैसे जो अपने एम्प्लॉयज़ पीपल्स है उसकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जा सकता है. इस 5 चीज़ों पे ऊपर जो है वो फोकस करके हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो TQM के थ्रू कर सकते हैं. इसके पीछे का जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है, जो 4 और 5 पिलर्स कह सकते हैं TQM के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के, वो क्या है? तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ रिजल्ट के मद्देनज़र नहीं करना है, पर हमें करना है कैसे, तो कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव करके करना है. अब किसकी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव करके करना है? तो कि फर्स्ट विच इज़ द डिमांड जनरेशन, कैसे डिमांड को समझ सकते हैं, जनरेशन को समझ सकते हैं, कैसे सप्लाई जनरेशन को समझ सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और लास्टली कैसे जो एम्प्लॉयज़ है, पीपल्स है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके साथ जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स होता है. A central principle of the TQM is that a mistake is may be made by the people. वो हर लोग जो है वो समझते हैं कि किसी गलती जो है वो एक आदमी से ही, एक ह्यूमन एरर से ही होती है, बट द मोस्ट ऑफ देम आर कोज्ड. और अब ये चीज़ सबको पता है कि जो है वो गलती के पीछे किसी ना किसी ह्यूमन एरर का जो है वो रोल प्ले है. पर वो चीज़ हमें पता है, पर उसकी जो रीज़न है, उसके जो कोजेस है, उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं. और एटलीस्ट प्रोमिनेटेड बाय अ 40 सिस्टम और प्रोसेस, किस वजह से, किस सिस्टम के कोजेस के थ्रू जो है वो एरर आ रही है, किस प्रोसेस की जो है वो एक फॉल्ट मैनर की वजह से जो एक डिफेक्ट जनरेट हो रही है, मिस्टेक हो रही है.
अब अगर हम लोग उसके ऊपर फोकसिंग करेंगे तो वो जो है वो सिस्टम वो प्रोसेस को हम लोग ठीक कर लेंगे, तो फिर मिस्टेक जनरेट होने के चांसेस जो है वो बंद हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट द रूट कोज ऑफ सच मिस्टेक्स इस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको फोकस कहाँ करना है कि उसके रूट कोजेस के ऊपर, उसके रूट के ऊपर कैसे जो है वो एक सिस्टम जो है वो फॉल्टी सिस्टम बन चुका है, कैसे जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो एक फॉल्टी प्रोसेस बन चुकी, आप उसके ऊपर फोकस करिए, उसके पीछे के कोजेस को जो है वो समझिए, उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है वो समझिए, और उसको जो है वो मिस्टेक प्रूफ सिस्टम जो है वो वहाँ पे आपको बनाना है। एंड रिपीटेशंस एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय चेंजिंग दिस प्रोसेस। अब उसको जो है उसको ठीक करके आपको एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक जो है वो सिस्टम वहाँ पे बनाना है। देयर आर द थ्री बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द प्रिवेंशंस। द फर्स्ट विच इज प्रिवेंटिंग द मिस्टेक or defect from occurring, like with the mistake proofing, or we can say as implementing the पोकायोकेज। पोकायोके को जो है वो इम्प्लीमेंट करके या फिर जो है वो एक मिस्टेक प्रूफिंग जो है वो सिस्टम जो है वो हमें बनाना है। सेकेंड, वेयर द मिस्टेक इज कांट बी एब्सोल्युटली प्रिवेंटेड। जब ऐसी कंडीशंस है कि आप अपनी मिस्टेक को जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिटा सकते, राइट, देन डिटेक्टिंग देम अर्ली टू प्रिवेंट देम बीइंग अ पास डाउन। तो आप उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लीजिए। वो जैसे आगे बढ़ती है डिफेक्ट, अगर कोई छोटी सी डिफेक्ट है तो धीरे धीरे जो है वो बड़ी बनने वाली है, तो आप पहले से उसको डिटेक्ट कर लिए। आप फर्स्ट स्टेज के अंदर किसी भी चीज़ को अगर डिटेक्ट कर लेते वो तो आगे बढ़ने से वो रुक जाता है, राइट, एंड विच विल बी एलिवेटेड चेंज। सो द इंस्पेक्शंस एट द सोर्सेज और द नेक्स्ट ऑपरेशंस, राइट, अगर आप ऑपरेशन के स्टेजेस जो है वो बढ़ा देंगे तो फिर वो जो है वो एरर जो है वो उसका जो इंक्रीजिंग मैनर है वो वहाँ पे रुक सकता है। देन वेयर द मिस्टेक इज रिकर, अगर कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, देन स्टॉप द प्रोडक्शंस अंटिल द प्रोसेस कैन बी करेक्टेड। तो अगर कहीं पे भी जो है वो अगर मिस्टेक जो है वो रीअकर हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको उस टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना चाहिए, राइट, जिससे आप उसकी प्रोसेस को जो है वो आप करेक्ट कर सके। उसके बाद करेक्शन के बाद ही आप जो है वो नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो चालू करिए टू प्रिवेंट अ प्रोडक्शंस विद द मोर डिफेक्ट, जिससे जो है वो ज़्यादा डिफेक्ट बढ़ने के चांसेस जो है उस टाइम पे जो है वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। सो दिस इज द थ्री मैकेनिज्म ऑफ द प्रिवेंशंस ऑफ द मिस्टेक्स। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब TQM कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, राइट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि TQM जो है वो इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। तो सबसे समझना वो चीज़ एक चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना वो अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट को मेंटेन करना वो उससे भी डिफ़िकल्ट है, और उसको कंट्रोल करना वो उससे भी डिफ़िकल्ट है। तो अब पहले हम इस TQM को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस विच इज़ द कमिटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। तो पहला चीज़ जो है वो आपका फ्रॉम द फ्रॉम एम्प्लॉयज़, राइट। तो एक एम्प्लॉय के तौर पे जो है वो सबका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो है इस मिस्टेक प्रूफ सिस्टम को बनाने के लिए अपना 100% जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग अपना 100% जो है उसको उसमें देने की कोशिश करेंगे। सो यू नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज़। सेकेंड विच इज़ अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कल्चर। आपको जो है वो कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा एक वर्क कल्चर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा वर्क कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस हो पाएगी।
The third, which is a continuous improvements in process, you have to work harder for the continuous improvement in the process. This total quality management is never stop. It is the endless process. You have to continuously improving your process, your technologies, your employees, your capabilities of the peoples, all these things. This is in the continuous improvement manners. Then the cooperations from the employees, as you are getting the cooperations from the employees, it will be easy to implementations of the TQM. You need each and every employees cooperations in the productions with implementations of the TQM. The next, which is the focus is on the customer's requirement. You have to focus on the customer's requirement, what the customer is wants from your product. If you understand that thing is properly, right, if you understand that thing is properly, it will be easy to implement the TQM, or it will be easy to satisfy the customer's need. And the sixth, which is effective control, is shall be laid down. कैसे जो है वो एक इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो बना जा सकता है, वो आपको यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. So this is the 6 steps of the implementations of the TQM. The first, which is the commitment from the employee. Second, which is the quality improvement culture. You have to develop a quality improvement culture. Third, which is a continuous improvement in the process. You have to continuously improving your process. Fourth, which is you need a cooperations from all the employees. Fifth, you have to focus on the customer's requirement. You have to continuously focus on the customer's requirement, what the customer is wants from your organizations, what the customer is wants from your product. And the sixth things, which is effective control. सो शैल बी लीड डाउन्स, राइट, आपको एक इफेक्टिव कंट्रोल मैनरिज्म जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बनाना है. सो दिस आर द 6 C of implementations of the TQM. Here you can see that the 6 C of the TQM implementations, which is the first, which is the commitment. Second, you have to develop the culture. Third, which is a continuous improvement. Fourth, you need a cooperations from the employees. Fourth, you have to focus on the customer's demands and customer satisfactions. And fifth, you have to control all these things with a continuum manner. So this is the basic things of implementations of the TQM. So today we discuss the benefits of the TQM. कैसे TQM के बेनिफिट्स जो है वो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो डेवलप करने की कैसे उसको डेवलप बेनिफिट्स हमें मिल सकते वो समझने की कोशिश की. इसके साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ कैसे TQM को समझा सकता है और कैसे उसके प्रिवेंशन के 3 स्टेप्स हैं. इसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशंस के 6 स्टेप्स जो है वो हमने आज समझने की कोशिश की. 6C जो है इसके इम्प्लीमेंटेशंस के हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि define the write a short note on the TQMs with the or the second way the question is asked to be that discuss the implementations or how to implementations the TQM in your organizations. So you have a knowledge about the 6C of the TQM or how to implement the TQM in your organizations. So in next lecture we try to discuss the another things about the TQMs, like what kind of the barriers are developed or we can face in the implementations of the TQM. We can discuss in the next series of the lecture. So this is all about the today's lecture. If you have any kind of the questions, doubt, you can ask me in the comment sections. I
I will definitely solve your doubts or questions in the next series of the lectures. After watching this video, you have to write your enrollment number into the comment sections. uh, it will be totally reflected as your online attendance, so please take it very seriously. We are always monitoring who is who is nots that enrollment number or not, so please take it very seriously. This is all about the today's lectures. Thank you so much for watching this lecture.